हाँ रिकॉर्ड होगा लेक्चर। जी आपका लेक्चर आज रिकॉर्डिंग आज होगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आई एम डॉक्टर तारा रियाज today's topic of SET is mutation. You are already taking lectures on genetics. Dr. Naveed is taking your lectures. I have posted two assignments in your WhatsApp group. Kindly do these two assignments and in your notebook, and when you will come back, we will check these assignments. These are regarding genetics. I hope you already have received it in WhatsApp group. Introduction to mutation. As you already know, mutation is a permanent change in the DNA. Permanent change, any change. It may be of nucleotide, it may be of nucleotide, three nucleotide base pair, it may be of any gene. Any permanent change in the DNA is known as mutation. Mutation that affect germ cells, which are the germ cells, these are X and Y germ cells. They are transmitted to the progeny and that give rise to inherited disease. जब X and Y क्रोमोसोम पे होगी म्यूटेशन वगैरह या फिर जर्म सेल्स पे जो भी तो वो क्या होगी it gives to inherited disease. They may be harmful mutations, they may be beneficial or they may be silent. DNA is highly stable molecule that replicates with amount of accuracy, some errors of replication do occur. Mutation and types of mutation. You people should know the mutation or changes in the genes or chromosome. Occur. If the gene mutation will occur, that may be the replacement of one nucleotide by another. In gene mutation, that may be addition or deletion of a nucleotide or replacement of one nucleotide by another. These are the gene mutation. We are talking about gene mutation. When we will talk about the chromosome mutation means changes in at the level of chromosome and not at the level of gene. Um, a change in the number of it may be chromosomal mutations may be change in the chromosome and number जैसे polyploidy, aneuploidy, monoploidy. ठीक है polyploidy means more than 23 से ज़्यादा set of pairs of chromosome. Aneuploidy means less number of chromosomes. Chromosomal mutation can occur like change in the structure of chromosome can occur, change in the number of chromosomes and change in the structure of chromosome. You people should know mutation can occur at the level of gene as well as at the level of the chromosome. When it will occur at the level of gene, mutation in that may be of the replacement of one nucleotide by other or deletion or addition of a nucleotide. And when it will occur at the chromosomal level, then we will say the chromosome mutation that their number may be changed, their structure may be changed, and change in the number of chromosome polyploidy and aneuploidy we will say. You people should answer if clear about the question whether they are asking about chromosomal mutations or whether they are asking about gene mutation, and then you have to attempt that question. Gene mutation. A gene mutation is defined as the alteration in the nucleotide in the DNA. Alteration in the secondary nucleotide in the DNA. The change can affect a single nucleotide pair or in large segment of the chromosome. Gene mutation is divided alteration in the nucleotide in the DNA. We divide the gene mutation into point mutation, frame shift mutation, and base substitution mutation. Point mutation single nucleotide की mutation होगी. Single nucleotide that may be silent, that may be missense, or that may be nonsense. I will further elaborate what is the silent, what is missense, and what is nonsense. And it may be of frame shift mutation and base substitution mutation. And we will discuss this point mutation. Point mutation is of the single nucleotide.
that may be single nucleotide mutation, that may be single nucleotide may be missed, add or deleted वगैरह I will talk. Point mutation. Point mutations are the most common type of gene mutations. They are also known as base pair substitution. Change in single nucleotide base pair. Point mutation में क्या होगा? Single nucleotide base pair पे हो रही है. Point mutation can be categorized into three types. That is silent mutation, missense, and nonsense. Silent mutation. Silent as already name told, that is silent. The change in one codon, like ये देखिए, change in one codon for an amino acid into another codon for the same amino acid. सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, ठीक है, लाइक GAA चेंज क्या हो गया GAG में, बट GAA भी है, वो भी क्या है, ग्लूटामीन को कर रहा है. अमाइनो एसिड कौन सा बना रहा है? ग्लूटामीन. और GAG भी ग्लूटामीन बना रहा है. तो म्यूटेशन तो हुई है, ठीक है, A जो है रिप्लेस हो गया G से, मगर दोनों ग्लूटामीन बना रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो गया, we will call it silent mutation, कि ये कोई अफेक्ट नहीं कर रही, ये साइलेंट है. Silent mutations are also referred to as synonym mutation, कि सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, so these are the silent mutation. Mutation, it is a type of point mutation that is occurring on the single base pair. Missense mutation. The codon for one amino acid is changed into codon of another amino acid. One amino acid का codon है like cat that translates into histamine. It is replaced by replacement of single nucleotide, that is CCT, that is produces another produce instead of histamine. Then the codon of one amino acid is changed into codon of another amino acid. Missense mutations are sometimes referred to as non-synonymous mutations. That is missense. Like मतलब कि इसमें ये होगा, अब प्रोटीन्स तो बनेगी, इनकरेक्ट अमाइनो एसिड बनेगी, मगर मेल फंक्शनिंग होगी. प्रोटीन्स बनेगी बट मेल फंक्शनिंग होगी, लाइक उनका फंक्शन रिड्यूस होगा, बिकॉज हिस्टामिन की जगह प्रोलीन या कोई और अटैच हो रहा है, ठीक है. Nonsense mutation. The codon of one amino acid is changed into translation termination codon. As you people already have read in genetics that there are the stop codons. There are codes of the amino acid which terminate the translation process, which terminate the amino acid synthesis. उनके स्पेशल होते हैं लाइक CAG. This is the stop codon. अब यहाँ पे CAG था, that is replaced by TAG. TAG क्या है? ये स्टॉप कोडोन है. स्टॉप कोडोन लगा, उसके बाद क्या है, आगे टर्मिनेशन हो जाएगी, आगे अमाइनो एसिड्स नहीं फॉर्म होंगे, नो प्रोटीन सिंथेसिस होगी. इस इनकरेक्ट सीक्वेंस की वजह से क्या हो जाता है, प्रोटीन शॉर्टनिंग हो जाती है, लेस प्रोटीन फॉर्म हो रही है. उसमें ये था, पीछे मिससेंस में ये था माल फंक्शनिंग प्रोटीन हो रही थी. इसमें ये क्या होगा कि शॉर्टनिंग ऑफ प्रोटीन हो जाएंगी, क्योंकि शॉर्टनिंग ऑफ प्रोटीन हो जाएगी, प्रॉपर प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा. पॉइंट म्यूटेशन इज ऑफ 3 टाइप, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए. 3 टाइप कौन सी है? सबसे पहले साइलेंट मीन्स ये सिंगल बेस पेयर पे हो रही है, ठीक है, बट सिंगल बेस पेयर पे हो रही है, मगर वो जो अमाइनो एसिड बन रहा है वो सेम है, ठीक है. मिससेंस में क्या है, कोडोन ऑफ वन अमाइनो एसिड इज चेंज इनटू कोडोन ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि मेल फंक्शनिंग हो रही है, मेल फंक्शनिंग प्रोटीन बन रही है. नॉनसेंस में क्या है, कोडोन ऑफ वन अमाइनो एसिड चेंज इनटू ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कोडोन, स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, वन अमाइनो एसिड का स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट हो रहा है. ये आप लोगों को पता होना चाहिए. पॉइंट म्यूटेशन. एक और है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. You people should know this type of mutation occurs when the addition or loss of DNA bases change a gene reading frame. A reading frame is consist of 3 bases, each code for one amino acid. क्या आप लोगों को पता होगा कि 3 अमाइनो एसिड मिलके क्या करते हैं, 3 अमाइनो एसिड मिलके एक 3 बेस पेयर मिलके एक जो ट्रांसलेशन होती है एक अमाइनो एसिड में होती है, वो 3 बेस पेयर से होते हैं. इसमें क्या हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट हो रहा है. एक फ्रेम शिफ्ट जैसे 3 का सेट्स बने हुए होते हैं, ठीक है. 3 CAG जो है वो हिस्टडीन को कर रहा है, आगे
गैग आ गया, ये सब कर रहे हैं, ठीक है, लाइक ये देखें कैट CAT कैट है, हिस्टीडीन को कर रहा है, फिर TCA सीरीन को कर रहा है, फिर CAC इनको कर रहा है। थ्री बेस पेयर क्या कर रहे होते हैं, एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं, इसके कोड कर रहे होते हैं। GTA है ये वेलाइन को कर रहा है, CTC है ये ल्यूसीन को कर रहा है, ATG है मिथ्योनिन को कर रहा है, CTA ल्यूसीन को कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्रेम शिफ्ट क्या हुआ, चेंज कोई भी ऐसी आई है, whether it may be of insertion or deletion, it can be any change। इसमें क्या हुआ है, ये C मिस हो गया। अब क्या है, कोड फ्रेम शिफ्ट क्या हो गई है, ए से स्टार्ट हो गई है। अब ATT कर रहे हैं, इल्यूसिन को कर रहे हैं, CAC हिस्टेडीन को कर रहे हैं, ACG थ्रियोनिन को कर रहा है, टायरोसिन को कर रहा है। जो पहले अमाइनो एसिड बने थे हिस्टेडीन सीरीन, हिस्टेडीन मिलाइन ल्यूसीन, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ल्यूसीन हिस्टीन थ्रियोनिन थायरोट्रोपिन सिराइन सिस्टीन। फ्रेम शिफ्ट ऑफ वन DNA बेस पेयर, फ्रेम शिफ्ट जब हुई है रिजल्ट इन एबनॉर्मल अमाइनो एसिड सीक्वेंस। प्रोटीन तो बन रही है, ठीक है, मगर जो नॉर्मल एबनॉर्मल अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। इससे क्या होगा कि जो भी प्रोटीन होगी वो मेल फंक्शनिंग होगी, यूजलेस हो। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। इसमें पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, इसमें ये नहीं हो रहा सिंगल बेस पेयर पे ही है, सिंगल बेस पेयर ही डिलीट हुआ है या ऐड हुआ है, या कोई भी उसमें कोई भी हो सकता है कि डिलीट हुआ है, मगर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा बेस पेयर शिफ्ट हो गया है। एक जो एबनॉर्मल अमाइनो एसिड सीक्वेंस, जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस बन रहा था वो एबनॉर्मल हो गया, पूरा का पूरा सीक्वेंस एबनॉर्मल हो गया। A frame shift mutation shifts the grouping of these bases, changes the code for the amino acid. The resulting protein is usually non-functional. Insertion or deletion can all be in frame shift mutation. Frame shift mutation में insertion भी हो सकती है, कोई एक base pair जो है वो add भी हो सकता है, और कोई एक base pair delete भी हो सकता है। An insertion changes the number of DNA bases in a gene by adding a piece of DNA, ठीक है, by adding a piece of DNA. As a result, the protein code by the gene may not function properly, ठीक है। इंसर्शन वही कि एक बेस पेयर और ऐड हो गया, ठीक है। इंसर्शन म्यूटेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, एक बेस पेयर और ऐड हो गया। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा CAT कैट फॉर स्टैंड फॉर हिस्टीडीन, और आगे उसके बाद CAT हिस्टीडीन ही है, मगर यहाँ पे एक बेस पेयर ऐड हो गया, इंसर्शन हो गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड की ACA बन गया, जिसके बाद आगे जो सारी आगे जो प्रोटीन आगे अमाइनो एसिड बन रहे हैं, हम इनकरेक्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस हो गया, ठीक है। आगे कह सकते हैं आप लोग की फ्रेम शिफ्ट हो गया, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट। A deletion, what is the deletion? A deletion changes the number of DNA bases by removing a piece of DNA। उसमें इंसर्शन में क्या हो रहा था, एक बेस पेयर ऐड हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, डिलीशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिलीशन हुई, के बाद भी क्या हुआ, इनकरेक्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस हो गया, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ही हो गया। Small deletion may remove one or few base pairs within a gene. Large deletion can remove an entire gene or several neighboring genes. The deletion DNA may alter the functioning of the resulting protein. Base substitution mutations are in which one base pair is replaced by another base pair, ठीक है। Base substitution can be divided into two. आपको बस base substitution का पता होना चाहिए, बाकी ये ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्जन म्यूटेशन होती है। ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन विल बी replaced by another purine base pair, and transversion में क्या है, purine will be replaced by pyrimidine और pyrimidine will be replaced by purine। ट्रांजिशन में क्या है, सेम बेस ग्रुप से, ठीक है, प्यूरिन जो है प्यूरिन से ही सब ट्रांजिशन में हो रही है, ठीक है, चेंज हो रही है, जबकि ट्रांसवर्जन में क्या है, प्यूरिन जो है वो pyrimidine से हो रही है, बस बेस सब्स्टिट्यूशन। A transition is the replacement of base by other base of the same chemical, ठीक है। A transversion is the opposite, the replacement of base by other base pair। Like purine जो है pyrimidine से हो रही है, pyrimidine जो है purine से हो रही है। I hope you people know about the purine and pyrimidine। And now we should discuss the Mendelian disorders।
What are the Mendelian disorders? Mendelian disorders are that occur at the single gene. ठीक है, single gene base पे होते हैं. ठीक है, इनमें ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं जिन्हें ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं. ठीक है, एलोसोमल डिसऑर्डर जिसे हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं. ठीक है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. What are the autosomal disorder? And autosome carry genes which determine the somatic characteristics. ठीक है, they not have influence on determining the sex of the individual. ये you people already know what are the autosomes and what are the sex chromosomes. They carry gene which determine the somatic characteristics like physical appearance वगैरह. Autosome appears in pair. ठीक है, 22 pairs of autosomes होते हैं, 1 pair of sex chromosome होते हैं. You people already know. Disorders related to autosomes are called autosomal disorders. What are the autosomal disorders? Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia. Types of autosomal disorder. Autosomal dominant. If the disorder is autosomal dominant, only one infected gene from one parent is enough to cause the disease. Autosomal dominant है तो क्या है कि दो आपको पता है दो पेयर हर क्रोमोसोम जो होता है पेयर फॉर्म में होता है. ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा? एक ही उसका इन्फेक्टिव जीन होगा तो वो अपने आप को डिजीज कॉज करेगा, वो डिजीज कॉज कर देगा. ठीक है, शो करेगा सिम्टम्स. जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है? अगर ऑटोसोमल जो डिजीज जीन है वो क्या है? वो रिसेसिव है, दैट इज नॉट एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ. उसकी बजाय जो नॉर्मल जीन है वो डोमिनेंट है, वो एक्सप्रेस कर रहा है. इफ ऑटोसोमल रिसेसिव कब डिजीज होगी? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होगी जब बोथ एलील्स ऑफ अ जीन आर डिजीज. If the disorder is autosomal recessive, there should be transfer of both affected genes from both the parents to cause the disease. If the gene from only one parent is transferred, disease gene जो है वो one parent से transfer हुए, then the child become the carrier and does not get the disease. ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में तो क्या होता है कि जो डिजीज है वो डोमिनेंट है. ठीक है, इन्फेक्टेड जीन है वो डोमिनेंट है. वो अगर सिंगल भी होगा, उसके साइड पे नॉर्मल एलील भी पड़ा हुआ है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा. जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है कि बोथ आर इन्फेक्टेड, अगर दोनों इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है, और वो अफेक्टेड या इन्फेक्टेड ट्रांसफर होंगे, अफेक्टेड जीन ट्रांसफर होंगे, तब वो डिजीज करेंगे. अगर एक अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है तो ये कैरियर स्टेट हो सकती है, मगर इसमें पेशेंट को डिजीज नहीं हो. एलोसोमल डिसऑर्डर्स वही सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है. Inherited disorders which are related to sex chromosomes are called allosomal disorders. Examples of allosomal disorders are Klinefelter, Turner syndrome, Turner में जिसका 45X0 होता है. X-linked allosomal disorders are X-linked dominant, X-linked recessive, and Y-linked. You should know that autosomal disorder difference between and the X-linked disorders. Autosomal disorders जो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होंगे. ठीक है, एलोसोमल किस पे होंगे? एक्स म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम पे होंगे. ठीक है, अगर एलोसोमल की बात हो जाए तो एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं, वैसे मेनली एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है. और ऑटोसोमल होंगे तो बोथ मेल एंड फीमेल को अफेक्ट करेंगे. ठीक है, जबकि एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर है ये किन्हें अफेक्ट करेंगे? मेल्स को ज्यादा अफेक्ट करेंगे, क्योंकि फीमेल्स इसमें कैरियर हो सकती हैं. फीमेल्स के दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, फादर से पैटर्नल एंड मैटरनल. तो और जबकि मेल्स में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है मैटरनल एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं. म्यूटेटेड जीन कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव. ऑटोसोमल में जो है वो म्यूटेटेड जीन क्या है? डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों से हो सकते हैं. और एलोसोमल में क्या है? म्यूटेटेड जीन जो है रिसेसिव होता है. ऑटोसोमल में क्या हो सकता है कि सफर जो पेशेंट है वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है. होमोजाइगस मीन बोथ एलील्स आर बोथ जीन्स आर affected, while heterozygous में one gene is affected and one is normal, like Down syndrome में, sickle cell anemia में. जबकि X-linked disorders में क्या होगा? सफर इज हेमीजाइगस. हेमीजाइगस मीन्स उसका एक ही एक्स क्रोमोसोम होता ही एक है. ठीक है, हेमीजाइगस. Gene mutation, but they will interfere with the protein synthesis. They suppress the transcription.
of DNA to RNA. G mass. ये देखिएगा किसी ने ना hand raise mass था, I think mass. G mass. Interfere, but gene mutations will cause they will interfere with the protein synthesis. They suppress the transcription that is from DNA to RNA formation. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को suppress करेंगे, produce abnormal messenger RNA produce होगा, defect carried over into translation, फिर abnormal proteins बनेगी, ठीक है, without impairing mutation. यही बनाए इंटरफेयर प्रोटीन सिंथेसिस से कैसे करती हैं, पहले ट्रांसक्रिप्शन को सप्रेस करती हैं डीएनए से आरएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर एब्नॉर्मल मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा, देन डिफेक्ट कैरीड ओवर टू द इनटू द ट्रांसलेशन, देन व्हाट विल हैपन, देन एब्नॉर्मल प्रोटीन विदाउट impaired synthesis formation. And genetic disorders, these are single gene this mutation, single gene mutations को हम क्या कहते हैं, Mendelian disorders, ठीक है. You people should know single gene disorders are mutations are called Mendelian disorders. इनमें multifactorial inheritance भी हो सकती है, chromosomal disorders भी हो सकते हैं, non Mendelian disorders भी हो सकते हैं. Mendelian inheritance pattern क्या होता है, autosomal dominant भी इसमें आते हैं, autosomal recessive भी हो सकते हैं और sex linked भी हो सकते हैं involving X chromosome. ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज भी हो सकती है, एक्स लिंक्ड भी हो सकती है. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिजीज इज इन हेट्रोजाइगोट, ठीक है, डोमिनेंट है, ठीक है, अफेक्टेड पार्ट क्या है, अफेक्टेड जीन डोमिनेंट है. हेट्रोजाइगोट जिसमें अफेक्टेड जीन भी है और नॉर्मल जीन भी है, उसमें क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होगी, ठीक है, क्योंकि जो अफेक्टेड जीन है दैट इज डोमिनेंट. नीदर में अब दूसरा पॉइंट क्या है, नीदर पेरेंट में हैव द डिजीज, जरूरी नहीं है कि, ठीक है, नीदर पेरेंट में हैव डिजीज, न्यू म्यूटेशन होगी, ठीक है. रिड्यूस पेनिट्रेंस मीन है, इसमें क्या होता है, पेनिट्रेंस रिड्यूस होती है, लाइक एक अफेक्टेड जीन, ठीक है, अफेक्टेड जीन आगे ट्रांसफर हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें साइन एंड सिम्टम्स भी हो, ठीक है, उस डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स भी हो, जीन तो ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, मगर पेशेंट में साइन एंड सिम्टम रिड्यूस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिकल सेल एनीमिया को तो सारे सेल्स जो है वो सारे के सारे जो है वो सिकल सेल्स हो, ठीक है. रिड्यूस पेनिट्रेंस, इसमें पेनिट्रेंस रिड्यूस होती है, शायद इसकी ये वजह हो सकती है कि एक जो एलील है ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला है और जो दूसरा वाला होता है जो नॉर्मल वाला है वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहा होता है, ठीक है, इसकी पेनिट्रेंस क्या होती है, रिड्यूस होती है. जैसे एक अफेक्टेड जीन ट्रांसफर हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस करे सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स से, ठीक है. फिर ये इसके ये पॉइंट्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए. ऑटोसोमल डोमिनेंट में पेनिट्रेंस जो है वो रिड्यूस होती है, ठीक है. वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी मीन कि जिस तरह डिजीज ने अपने आप को शो करना है, ठीक है, जिस तरह डिजीज अपने आप को एक्सप्रेस करती है वो वेरिएबल हो सकता है पर्सन टू पर्सन. लाइक एक में न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस उसमें सिर्फ ब्लैक कलर के पैचेस है, जबकि दूसरे में न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है तो इतने सारे ब्लैकिश और मैक्यूल्स और पेपिलर वगैरह बने हुए हैं स्किन पे, ठीक है. इसमें एक्सप्रेसिविटी मींस जैसे एक्सप्रेस कैसे कर रही है वो अपने आप को डिजीज, तो वो वेरिएबल है. पेशेंट एक पेशेंट दूसरे से वेरिएबल हो सकता है, ठीक है. डिजीज तो उसे होगी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, उसमें जीन भी वही होगा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का, मगर हो सकता है एक में सिर्फ ब्लैक पैच हो और दूसरे में क्या है, दूसरे में मैक्यूल्स और पेप्यूल्स इतने सारे बने हुए हो, ठीक है, पेपिला बने हो, तो स्किन पे ये इसकी एक्सप्रेसिविटी वेरिएबल है. दूसरी इसमें पेनिट्रेंस रिड्यूस है, पेनिट्रेंस रिड्यूस मीन कि एक से जीन
पेनिट्रेट कर रहा है दूसरे में, मगर ये वो अपने साइन एंड सिम्टम्स वेदर शो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मोस्टली रिड्यूस may have delayed onset। ये डिजीज क्या होती है? डिलेड ऑनसेट मींस के लेट एज में जाके, थोड़ी एडल्टहुड में जाके पता चलती है। यूजुअली रिजल्ट इन रिड्यूस प्रोडक्शन आर इनएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, यूजुअली ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ द आर इनएक्टिव प्रोटीन, प्रोटीन की रिड्यूस प्रोडक्शन हो रही होती है या इनएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। आप लोगों को ये थोड़े से 4 to 5 पॉइंट्स की रिड्यूस पेनिट्रेंस होती है, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी है, मे हैव डिलेड ऑनसेट है, मे रिजल्ट इन रिड्यूस प्रोडक्शन और इनएक्टिव प्रोटीन, ये पता होनी चाहिए। और इसके साथ आपको 3 to 4 एग्जांपल्स पता होनी चाहिए ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की। ऑटोसोमल डोमिनेंट किस में भी हो सकता है? हेट्रोजाइगोट्स में भी हो सकता है, ठीक है। होमोजाइगस में तो होना ही होना है, हेट्रोजाइगोट्स में भी हो सकता है, ठीक है। और ये नीदर पेरेंट में हैव डिजीज, इसमें न्यूली म्यूटेशंस मोस्टली होती हैं। दूसरी इसकी डिजीज आप देखेंगे, हंटिंगटन डिजीज, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफीज, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस, हेरिडिटी स्क्लेरोसाइटोसिस, von Willebrand डिजीज, ये सारी ब्लड की जो है, मार्फन सिंड्रोम, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बोन्स का, ठीक है, एकोंड्रोप्लेजिया, फेमिलियल हाइपरक्लस्टेमिया, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, ठीक है। ये सारी की सारी डिजीज में आपको 4 to 5 ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जो आप लोग को इजी लगते हैं, लाइक पॉलीसिस्टिक किडनीज, मार्फन सिंड्रोम, von Willebrand डिजीज, एकोंड्रोप्लेजिया, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, दो मतलब कि हर से आप लोग को आने चाहिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट में ऑटोसोमल डिजीज है, बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जनरेशन नॉट स्किप। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है, ठीक है, डिजीज इज इन होमोजाइगस। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए क्या होना चाहिए? पेशेंट को होमोजाइगोट, एक उसमें अफेक्टेड, दोनों अफेक्टेड एलील होने चाहिए। अगर उसमें एक अफेक्टेड हो एक नॉर्मल हो तो वो डिजीज नहीं करेगा, नॉर्मल वाला जो है वो डोमिनेंट होता है, इसलिए वो डिजीज नहीं करेगा। मगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए क्या है? दोनों एलील जो है वो अफेक्टेड होने चाहिए, इसलिए ये डिजीज इन होमोजाइगोट में डिजीज होती है, ठीक है। मोर यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन देन ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमने एक्सप्रेशन की एक्सप्रेसिविटी की बात की थी कि वेरिएबल है, जबकि इसमें क्या है? यूनिफॉर्म है। ऑफन कंप्लीट पेनिट्रेंस के डिजीज का अगर डिजीज है, उसके एलील्स हैं, अफेक्टेड एलील्स हैं, तो कंप्लीट पेनिट्रेंस सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स शो करेगी, ठीक है। उसमें शायद लास्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या था कि पेनिट्रेंस रिड्यूस थी, उसकी वजह यही हो सकती है कि उसमें एक नॉर्मल एलील भी पड़ा होता है, ठीक है। कंप्लीट इसमें तो दोनों ही अफेक्टेड एलील है, इसमें क्या है? कंप्लीट पेनिट्रेंस है। ऑनसेट यूजुअली अर्ली इन लाइफ, ठीक है। अर्ली लाइफ में क्या इसका ऑनसेट होता है, ठीक है। ज्यादातर आपको यही मिलेंगे इनहेरिटेड डिजीज जो न्यू बॉर्न में होती है, वही न्यू म्यूटेशन रियली डिटेक्टेड, न्यू म्यूटेशन, जबकि ऑटोसोमल डोमिनेंट में न्यू म्यूटेशन हमें मिल रही है, ठीक है, जबकि इसमें हमें न्यू म्यूटेशन रियली डिटेक्टेड। प्रोटीन शो लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसमें हमें क्या मिल रहा था? प्रोटीन क्या थी, ठीक है, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन थी या इनएक्टिव थी। जब इसमें क्या है? प्रोटीन शो लॉस ऑफ फंक्शन। इसमें इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जितने भी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। These are much more common than autosomal dominant. Cystic fibrosis, phenylketonuria, galactosemia, homocystinuria, lysosomal storage disease, thalassemia, आप सारे देखेंगे, सारे कौन से इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। आप लोगों को डिजीज याद करने में जो मिक्स इसलिए नहीं होगी, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आप लोगों को जितने याद आते हैं, phenylketonuria, galactosemia, homocystinuria, lysosomal storage disease, लिपिड स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, थैलेसीमिया, ये सारी जितनी भी आती हैं वो आप लोग ऑटोसोमल रिसेसिव में लिख देना। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमारे पास कौन सी थी? पीरोसाइटोसिस, हंटिंगटन, वॉन विलब्रैंड, मार्फन, एकोंड्रोप्लेजिया, फेमिलियल हाइपरक्लोस्टेमिया, ठीक है, ये अडल्टहुड में जाके एक्सप्रेस करती हैं, जबकि वो क्या करती हैं? न्यूबॉर्न में एक्सप्रेस कर देती हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को ये बताना चाहिए बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व, जनरेशन स्किप, इसमें जनरेशन स्किप होता है। एक्स लिंक डिसऑर्डर, एक्स लिंक डिसऑर्डर मोस्टली कभी बहुत कम चांसेस है कि फीमेल्स में हो जाते हैं फीमेल्स में, ठीक है, अगर दोनों हो तो मोस्टली मेल्स में होते हैं, ठीक है, मेल्स अफेक्टेड होती है, ठीक है। मगर मेल जो है वो अपने सन्स को ट्रांसफर नहीं करेगा,
क्योंकि एक्स लिंक्ड है, ठीक है, मेल से अब सन को क्या जाना है, वाई क्रोमोसोम, ठीक है, सन जो है उसके ओके होंगे, ठीक है। डॉटर्स क्या होंगी, सबकी सब कैरियर होगी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, जो उसके फादर से उसे एक्स क्रोमोसोम आना है वो अफेक्टेड है, तो डॉटर सारी की सारी कैरियर होगी। अगर फादर और मदर दोनों से फादर से अफेक्टेड आ जाए और मदर से भी अफेक्टेड आ जाए, तब इन दैट केस फीमेल्स जो है ना अफेक्टेड हो सकती है, वरना मोस्टली यही होता है मेल्स अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। वाई क्रोमोसोम इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव का इसलिए नहीं होना क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है मेल में, ठीक है, उसमें हम ये कह ही नहीं सकते ये डोमिनेंट है ये वाला या रिसेसिव है। दूसरा तो है ही वाई क्रोमोसोम क्योंकि होमोलोगस नहीं है। हेटेरोजाइगस फीमेल्स हैव नो फिनोटाइप एक्सप्रेशन। हेटेरोजाइगस फीमेल्स लाइक जिसमें एक कैरियर है, उसमें एक अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है, ठीक है, वो कोई भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, वो कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं देती, कैरियर कोई साइन एंड सिम्टम्स में अफेक्ट किसने होना है, मेल ने। और मेल ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना है नहीं, क्योंकि मेल की नेक्स्ट जनरेशन में वाई क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है, मेल से फादर से, और मदर से मेटरनल आएगा। तो जो डॉटर्स कैरियर होंगी, जो जिन्होंने फादर से लिया है, वो आगे ट्रांसफर। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कौन से हैं, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया ए बी, ठीक है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, डायबिटीज इंसिपिडस, लिशनियन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सन्स ऑफ अफेक्टेड मेल्स आर ओके, ठीक है, ये देखिए ये अफेक्टेड मेल है, सन उसके क्या होंगे, ओके होंगे, जनरेशन कितने इसमें मैटर ही नहीं करता। थैंक यू बेटा, आप लोगों को मैंने 2 असाइनमेंट्स पोस्ट किए हैं ग्रुप में, अगर उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अपनी बुक खोलें, वो दोनों असाइनमेंट्स आप लोगों ने करनी है, जब आप लोग हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह तब वो असाइनमेंट्स आप लोग की चेक की जाएंगी। मैंने 2 असाइनमेंट्स ग्रुप में पोस्ट कर दी है। आप लोगों को ज्यादा क्या पता होना चाहिए, पॉइंट म्यूटेशन का पता होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन में कौन कौन सी टाइप्स हैं, मिससेंस, नॉनसेंस, ठीक है, साइलेंट म्यूटेशन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं उसकी तरफ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का पता होना चाहिए। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में कौन कौन से आते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स 4 to 5 के नेम आने चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो हेट्रोजाइगस में होंगे, ठीक है, पेनिट्रेंस इसकी रिड्यूस्ड है, ठीक है, इसकी एक्सप्रेसिविटी वेरिएबल है, ठीक है, और जो ऑटोसोमल रिसेसिव की बात है उसमें पेनिट्रेंस कंप्लीट है, ठीक है, एक्सप्रेसिविटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, इसमें इसके लिए दोनों होमोजाइगस होना जरूरी है, ठीक है, दोनों अफेक्टेड एलील होने चाहिए। जबकि सेक्स लिंक में क्या है, सेक्स लिंक में क्या है, मेल्स मोस्टली अफेक्टेड होती हैं, ठीक है, फीमेल्स कैरियर होती हैं। और सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स आप लोगों को पता होना चाहिए, हीमोफीलिया है, ठीक है, हीमोफीलिया, उसके अलावा डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है, लिशनियन सिंड्रोम। आप लोगों को ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव का भी पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस